Actually, I was waiting for few more to join, but till 16. It's okay. Okay, so what we have done in the last session, we have gone through the problems that we were facing in the wireless domain. That was hidden and exposed terminal problem and the near and far terminal problems. Okay, so that we have already seen with the help of the diagram. First, if I revise the thing, then we have started with this particular chapter, that is mobile networking. In mobile networking, we have seen what are the topics which we are going to cover. After that, medium access control, which is very important layer from which the medium access can be controlled. The medium access can be controlled so that only the authorized person or authorized user can send or transmit the data through that particular medium. Okay, and not all the users or senders can send the data through that particular medium. Okay, because we have to control. We don't want that particular medium to be congested. Okay, we don't want that medium to be choked. Okay, so uske liye what we have done, we have controlled the access of the medium. Okay, so for that we have already seen few of the protocol like Aloha, slotted Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. Okay, so all these protocols were applicable in the wired environment, and as we have already seen in the computer network. Now if we talk about the wireless domain, then in this particular domain, these protocol, that is Aloha, slotted Aloha, and these protocol will not be applicable. These protocol will not work. Okay, and we will face some kind of issues. And what are those issues? Those issues are hidden and exposed terminal problem. Those are नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम्स. ओके, एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि भाई इन चीज़ों को अगर रिजॉल्व करना है, देन यू नीड समथिंग गुड प्रोटोकॉल, you need something good technique. Okay, you need something good strategy so that these problems can be avoided, these problems can be resolved. Okay, ये हमारा हुआ था लास्ट तक. ओके, नाउ जब हम लोगों ने एक नया प्रोटोकॉल, एक नया मेथड, एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने जब प्रपोज किए, तो आफ्टर दैट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग को उसको प्रॉपरली बताना पड़ेगा, एंड वी हैव टू रिजॉल्व दोज इश्यूज आल्सो. ठीक है, सो लेट मी प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट इज मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस. दैट इज इन शॉर्ट वी कॉल इट इज अ मैका. ओके, so multiple access with collision avoidance. Now let us start with the resolution part. First of all, we'll see what happens in the multiple access with collision avoidance. We have to use some sort of technique, and we'll take all the problems one by one, and then we'll try to resolve it. Okay, so your multiple access with collision avoidance MACA present a simple scheme. Okay, we have only two signals. Okay, we are going to make use of these two signals only, that I'm going to talk later. So we are going to talk about, we are going to make use of these two signals, and you people are aware of those technique and those signals. Okay, the first signal is RTS and the second signal is CTS. Okay, I hope you remember this one. I think आप लोगों ने इसको शायद कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया होगा. अगर किया होगा तो अच्छी बात, नहीं किया होगा तो भी कोई इशू नहीं. विल सी दैट पर्टिकुलर वन इन दिस सेशन. ओके, और यहाँ पर आप लोग को वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी. ओके, so this is the 2 points I have put just for the introduction of this MACA. It presents simple scheme that solve the hidden terminal problem and other problems. It does not need a base station and is still a random access Aloha scheme, but with the dynamic reservation. Okay, that is a very important term we are using, with a dynamic reservation. Okay, if the two terminals wants to communicate with each other, then at that moment of time they have to reserve themselves. Okay, कि भैया देखो हम दोनों आपस में ट्रांसमिशन और रिसीविंग करने वाले हैं. Okay, so nobody is going to disturb us. Okay, तो this is a kind of dynamic reservation they are going to do. अच्छा, मैंने आप लोग को पूछा नहीं, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? सब स्क्रीन वगैरह बराबर है? एवरीथिंग इज ओके? यस सर. ओके. So first of all, let us take the first scenario, that is the hidden terminal problem. You remember the hidden terminal problem जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा? It was hidden terminal problem. ये यहाँ पर पूरे स्कीम है. इस स्कीम में क्या होता है कि आपके
इस स्कीम में क्या होता है कि आपका ए जो होता है वो ए वांट्स टू ट्रांसमिट समथिंग टू बी एंड सी आल्सो वांट्स टू ट्रांसमिट समथिंग टू बी। ओके, दोनों एक ही टर्मिनल को सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये भाई साहब जब सेंड करते हैं, ये भाई साहब जब सिग्नल को सेंस करते हैं तो इनकी रेंज सिर्फ बी तक है, ठीक है। तो इन्होंने सेंस किया तो इनको मीडियम आइडल दिखा, ये भाई साहब की रेंज भी बी तक है खाली, तो इसने जब सेंस किया तो उसको भी मतलब मीडियम आइडल दिखा, ठीक है। तो ये मैं आपको सिनेरियो इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि उसका रिजोल्यूशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ए एंड सी बोथ एट द सेम टाइम या एट डिफरेंट टाइम दे सेंस द मीडियम, या आसपास में थोड़ा सा हो सकता है, so they sense the medium and they found that the medium is idle. Okay, if the medium is idle, then what they will do, they will start transmission. Okay, and when they will start transmitting, so the signal goes to B and the signal will be, and there will be a collision at the terminal B. Okay, so it was the hidden terminal problem that we have seen. तो वही चीज यहाँ पर पहले सिनेरियो मैंने बताया हूँ कि रिमेंबर ए एंड सी बोथ वांट्स टू सेंड टू बी, ए है सी है, दोनों के दोनों बी को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ए हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रांसमिशन, बी इज हिडन फॉर सी, और एंड सी आल्सो स्टार्ट विद द ट्रांसमिशन thereby causing a collision. So A is hidden for C and C is hidden for A, दोनों एक दूसरे के लिए हिडन है, ठीक है, and there will be a collision at the B. So this is the scenario. अब इसको solve कैसे करेंगे? There is a solution. Okay. So your MACA, that is multiple axis with collision avoidance, can avoid this particular hidden terminal problem. तो ये आपको वाइवा क्वेश्चन भी है, पूछता है कि how you are going to solve with the help of MACA, how you are going to solve, या फिर कितना पूछेंगे how you can resolve the hidden terminal problem. आप hidden terminal problem को resolve कैसे करेंगे? Okay, so that will be a simple question. So what we have to do, as you can see in the diagram, first of all, whoever wants to transmit the data or whoever wants to send the information or transmit the data, first it has to send the RTS signal, ठीक है। सबसे पहले the person, the terminal who wants to transmit the data to the B person, for example in this case A is a sender and B is the receiver, okay। A को कुछ डेटा सेंड करना है B को, ओके। सो A will transmit an RTS, A will transmit RTS signal to B, okay। और RTS सिग्नल में क्या रहेगा, RTS is called as ready to send signal, okay। तो ready to send signal में क्या होगा बेसिकली, तो ready to send signal के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, it contains the name of the sender, यानी अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो उसमें मेरा नाम होगा, जिसको भेजना चाह रहा हूँ उसका नाम रहेगा, और कितनी देर बात करेंगे, फ्यूचर ट्रांसमिशन की लेंथ क्या होंगी, कब तक बात करेंगे, कब तक कितना ट्रांसमिट करना है, उसकी लेंथ वगैरह होगी, ठीक है। तो ये मैंने आरटीएस जैसे एक रिक्वेस्ट टाइप है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडी टू सेंड, ठीक है। और कहीं कहीं पे उसको रिक्वेस्ट टू सेंड भी बोलते हैं, बहुत कम जगह पे, लेकिन कहीं कहीं पर उसको रेडी टू सेंड बोलते हैं, कहीं पर रिक्वेस्ट टू सेंड बोलते हैं, ठीक है। यानी ए इज रिक्वेस्टिंग टू बी, A is requesting to B that I am a sender and you are the receiver and I want to transmit this data for 2 minutes, okay। तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। So this is the signal which is sent by A to B, okay। अब B क्या करेगा, B will receive that signal। अब रिसीव करने के बाद में क्या करेगा वो, B will respond, okay। अब B respond कैसे करेगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो भाई साहब A ने RTS सिग्नल भेजा B को, और आरटीएस में क्या क्या कंटेंट है, आरटीएस के अंदर कंटेंट है सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम और फ्यूचर ट्रांसमिशन की लेंथ, ये तीन चीजें इसमें हैं, ठीक है। जब बी देखेगा, ओके ए वांट्स टू ट्रांसमिट, ओके सो ए इज अ सेंडर एंड आई एम द रिसीवर, ही वांट्स टू ट्रांसमिट टू मी, ओके। सो फॉर एग्जांपल बी ने रिसीव किया और सारी इंफॉर्मेशन पढ़ा, तो नाउ व्हाट बी, इफ बी इज नॉट एंगेज्ड, okay, B तो अभी फिलहाल कहीं एंगेज है नहीं, okay। So what B will do, B will broadcast a CTS signal, okay। B क्या करेगा, B एक CTS सिग्नल भेजेगा और CTS सिग्नल को हम लोग बोलते हैं clear to send, okay। RTS is the request to send or we also call it as a ready to send and CTS is the clear to send, okay। तो B क्या करेगा, एक CTS सिग्नल अपने पास में भेजेगा, अपनी रेंज में भेजेगा, ठीक है।
जो भी है दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह भेजेगा। तो CTS इज द क्लियर टू सेंड एंड CTS विल इंक्लूड व्हाट, CTS इंक्लूड द नेम ऑफ द सेंडर, कंफर्म करेगा, ठीक है, कंफर्म करेगा बी कि ओके मैं सेंडर कौन है ए, रिसीवर कौन है बी, ओके, और जो भी डेटा को करना है एंड द लेंथ ऑफ द फ्यूचर ट्रांसमिशन साथ में रिप्लाई करेगा। तो ये जब ये फ्यूचर ट्रांसमिशन इसके अंदर भी क्यों है, इसका एक रीजन है, ठीक है। तो बी ने अनाउंस कर दिया, कंफर्म कर दिया कि जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स आई विल एंगेज, आई विल बी रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द ए सेंडर, ठीक है। तो ये CTS यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया। अब जब यहाँ गया तो ये बेचारा जो तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था बी को कुछ डेटा सेंड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रुक जाएगा, बिकॉज there is a CTS signal triggered from the B terminal. There is a CTS signal triggered from the B terminal. So your C has to wait until the CTS signal जब तक कंप्लीट हो नहीं जाता, उसकी फ्यूचर लेंथ है, फ्यूचर ट्रांसमिशन की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो नहीं जाती, तब तक के लिए सी को क्या करना पड़ेगा, खामोश बैठना पड़ेगा। सी विल नॉट ट्रांसमिट एनीथिंग टू बी और एनी अदर, ठीक है। तो सी ने बी को नहीं भेजा, ठीक है। तो ये उसका एक रिजोल्यूशन हो सकता है, यानी कि मैका के स्कीम के तहत, मैका की स्कीम के अकॉर्डिंगली वी कैन मेक यूज ऑफ RTS and CTS signal in order to avoid any kind of collision, which is called as the hidden terminal problem, and this problem can be resolved with the help of this scheme. Okay, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, whoever wants to transmit the signal or whoever wants to transmit the data, so in our case that we have seen in the hidden terminal problem, A and C were trying to send the data to B, and B at B terminal there will be a collision because there is a data coming from both the sides, so there will be a collision. तो अब ऐसा अवॉइड करने के लिए we can make use of the RTS and CTS signal. अब RTS signal is the ready to send or also called as request to send. तो A is requesting to B that भाई मैं हूँ सेंडर, तू है रिसीवर, और इतने 2 मिनट के लिए हमको ट्रांसमिशन करना है, ठीक है। तो उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो दैट इज द RTS सिग्नल। उसके बाद में बी, अगर बी हाँ बोलेगा तो बी क्या करेगा, बी एक CTS सिग्नल भेजेगा। तो CTS सिग्नल उसको दोनों साइड में गया, ठीक है, मतलब और उसकी जहां तक रेंज है वो रेंज तक जाएगा। तो दैट CTS सिग्नल विल बी हर्ड बाय A टू द C आल्सो, ठीक है। व्हेन इट विल बी हर्ड बाय A, देन A बोलेगा चलो ठीक है आ गया, मतलब अपन अभी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो A को ग्रीन सिग्नल मिलेगा एंड A विल स्टार्ट द ट्रांसमिशन। और यही CTS सिग्नल जब C को मिलेगा, देन C विल थिंक व्हाट, अरे भाई B तो अभी एंगेज हो गया, B अभी एंगेज हो गया, वो भी कितने टाइम के लिए, ये 2 मिनट के लिए एंगेज हो गया, ठीक है। तो C विल वेट until that time completes, okay। तो CTS मिलने का फायदा ये हुआ उसको कि उसने ट्रांसमिशन नहीं किया। अगर ट्रांसमिशन करता तो क्या होता, अगेन फिर कोलिजन हो जाएगा बी पर। तो इस कोलिजन को अवॉइड करना था, इसके लिए वी हैव मेक यूज ऑफ दिस टू काइंड ऑफ सीक्वेंस, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें भी कोई ऐसे वो नहीं है, बट स्टिल इफ एनीवन हैज डाउट देन प्लीज लेट मी नो। समझा आप लोगों ये टॉपिक? We have solved the first problem. We have solved the first problem using MACA scheme, and we have make use of the RTS and CTS signal. समझ में आया आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग MACA scheme, ठीक है। कहाँ पर है भाई, ये हमारा डायग्राम था, ये सिनेरियो था, ये डायग्राम था, सॉल्व किए, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने भी देखा, एक और है हिडन, एंड दिस CTS इज नाउ हर्ड बाय C, वही मतलब एक्सप्लेनेशन वही है, मैं एक बार खाली रीड कर रहा हूँ। एंड दिस CTS इज नाउ हर्ड बाय C एंड द मीडियम फॉर फ्यूचर used by A is now reserved for the duration of the transmission. For example, मैंने आपको बताया 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डायनामिक रिजर्वेशन हो गया। भाई 2 मिनट के लिए इस बंदे को कोई नहीं छेड़ेगा, मतलब A और B ट्रांसमिशन कर रहे हैं, A और B आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं,
तो आपका सिंपल बात है ना, जब ए और बी जब दोनों एंगेज है तो उनको कुछ डेटा सेंड करके फायदा है नहीं है, ठीक है। तो सी अपना आप ही अब रुक जाएगा, ओके। आफ्टर रिसीविंग सीटीएस, सी इज नॉट अलाउड टू सेंड एनीथिंग फॉर द ड्यूरेशन इंडिकेटेड इन द सीटीएस टुवर्ड्स बी, ठीक है। 2 मिनट के लिए भाई इसको अलाउ भी नहीं करेगा, सिस्टम अलाउ भी नहीं करेगा कि भाई तुझे ये 2 मिनट के लिए तू कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर नाउ एंगेज्ड, ओके, एंड दे आर ट्रांसमिटिंग एंड दे आर रिसीविंग, ओके, मतलब दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। A collision cannot occur at B during data transmission and the hidden terminal problem is solved, provided that the transmission condition remains the same. Okay, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कैसा है कि कोलिजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट लिखा हूँ। स्टिल कोलिजन कैन अकर ड्यूरिंग द सेंडिंग ऑफ आरटीएस, हो सकता है दोनों के आरटीएस सेम टाइम पे आए, क्या करेंगे उस टाइम पे। Still collision can occur during the sending of an RTS. Both A and C could send an RTS that collide at B. दोनों के आरटीएस भी क्या एक तरह का सिग्नल है, ठीक है। तो दोनों के आरटीएस आए और आरटीएस एक टाइम पे आए, तो इट विल क्या क्या हो सकता है, वो दोनों आरटीएस के सिग्नल फ्रॉम ए एंड सी विच आर कमिंग टुवर्ड्स बी, तो वो भी वहां पर भी हो सकता है, उन आरटीएस का कोलिजन भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो कोलिजन हो गया दोनों लॉस। अब दोनों ने रिक्वेस्ट की तो दोनों के जो सिग्नल थे वो वही हो गया लॉस्ट। तो आरटीएस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डेटा ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली एक कंट्रोल सिग्नल होता है, एक छोटा सा कंट्रोल सिग्नल होता है, एंड कंपेयर्ड टू द डेटा सिग्नल, जो डेटा सिग्नल आपका डेटा होता है तो वो अलग है ट्रांसमिशन, बट ये आपका एक कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिग्नल जस्ट फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांजैक्शन, ओके। तो ये कंट्रोल सिग्नल होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मच लोअर स्टिल, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। So we resolve this contention and acknowledges only one station in the CTS. So no transmission is allowed without any appropriate CTS. आपको तो पता है CTS जब तक रहेगा नहीं तब तक के CTS जब तक रहेंगे, और चाहे CTS में जिसका नाम है वही सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, बट लेकिन एक छोटा सा, एक बोलते हैं ना, एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी है कि इफ आरटीएस सेंड करते समय अगर कोलिजन हो गया तो सीटीएस भेजने का सवाल ही नहीं होगा। ओके, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम सोल्यूशन यूजिंग मैका, ठीक है। 5 मिनट में हम लोग इसको कर लेते हैं, आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन करे आज। एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम सोल्यूशन यूजिंग मैका। कैन मैका आल्सो हेल्प्स टू सॉल्व द एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। The scenario what we have seen is that, you know, remember B wants to send data to A and C. देखो अगर आपको याद होगा तो, वरना हम लोग वापस एक बार इसको रिवाइज करते हैं। दिस इज नियर इनफॉर्म टर्मिनल, तो ये हमारा हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। कहाँ है बाबा, एक्सपोज कहाँ है, यहाँ पर एक्सपोज, ठीक है। तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में क्या था, नाउ कंसिडर अ सिचुएशन दैट बी सेंड समथिंग टू ए एंड सी, बी सेंड समथिंग टू ए एंड सी, सी वांट्स टू ट्रांसमिट डेटा। मैं एकदम थोड़ा आगे पीछे पढ़ रहा हूँ। तो बी सेंड समथिंग टू ए, तो बी ने ए को भेजा, मतलब चलो आप तीनों को एक साथ में कर सकते हो। यहाँ देखो ना, आपका ए बी सी साथ में है, ठीक है, और ट्रांसमिशन रेंज आप लोगों को पता है, तो ये थोड़ा सा माइंड में आपको रखना पड़ेगा। तो सिचुएशन ये है कि बी सेंडिंग समथिंग टू ए एंड सी वांट्स टू ट्रांसमिट डेटा टू सम अदर मोबाइल फोन आउटसाइड द इंटरफेरेंस रेंज। अब एक्सपोज टर्मिनल क्या में क्या हुआ था, बेसिकली ए आपका एक्सपोज हो गया था। कैसे एक्सपोज हुआ था कि आपका जो है ना सी किसी और को भेजना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ने ए को भेजा, देखो यहाँ पर वही है सिचुएशन। हाँ, B is sending something to A, okay, and C wants to send something, because actually क्या 2-2 3-3 है सिचुएशन, तो याद नहीं रहती, इसके लिए डायग्राम रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वापस से एक बार समझो पहले क्या है आपका एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इन दिस केस थोड़ा सा फोकस करो, मैं अभी थोड़ा पेन का यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ बी सेंड करना चाह रहा है ए को, ठीक है। अब बी जब सेंड करेगा तो क्या यहाँ पर क्या होगा, वो मीडियम को सेंस करेगा पहले, तो मीडियम उसको फ्री दिखेगा, ठीक है, पहला स्टेप। तो बी ने ए को ट्रांसमिशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बी ने जब स्टार्ट किया तो बी की रेंज कहाँ तक आती है, बोलो मुझे, बी की रेंज यहाँ तक आती है, ठीक है। अब सी भाई साहब को किसी और को ट्रांसमिशन करना है, ठीक है। अब जब सी को किसी और को ट्रांसमिशन करना है तो वो क्या करेगा,
एक अच्छे शरीफ बच्चे की तरह पहले मीडियम को सेंस करेगा, ठीक है। जब मीडियम को सेंस करा तो उसकी रेंज देखो यहाँ तक आ रही है, बी की रेंज यहाँ तक आ रही है। जब इसने मीडियम को सेंस किया तो पता चला कि मीडियम तो बिजी है, मीडियम अभी आइडल नहीं है, चैनल जो है तो बिजी है, चैनल आइडल नहीं है। देन व्हाट विल हैपन, सी विल वेट, ओके, सी विल वेट। हालांकि उसको वेट करना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए, बिकॉज वो उसके फड्डे में क्यों पड़ा है, बी किसी और को, बी ए को भेज रहा है और सी यहाँ किसी और को भेज रहा है, तो दोनों के ट्रांजेक्शन अलग अलग है, कोलिजन होने का कोई सवाल ही नहीं है। बट स्टिल व्हेन सी विल sense the medium, then it found that the medium is not idle, the medium is busy, because B की रेंज कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक रेंज है, और ये यहाँ तक रेंज आने की वजह से देखो रेंज यहाँ तक है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक रेंज है, तो ये रेंज यहाँ तक आने की वजह से जब C ने सेंस किया मीडियम को तो पता चला कि मीडियम तो बिजी है। हालांकि B किसको सेंड कर रहा है, B आपका A को सेंड कर रहा है, इसके लिए वो आपको मीडियम बिजी दिखा रहा है। बट आप यहाँ से यहाँ तो सेंड कर सकते हो ना, लेकिन फिर भी योर B इज नाउ एक्सपोज्ड, ओके, B इज एक्सपोज्ड टू C, ओके, आपका जो B टर्मिनल है दैट B टर्मिनल इज एक्सपोज्ड, ओके, वहां पर क्या था, हिडन था, यहाँ पर क्या है, योर B इज नाउ एक्सपोज्ड फॉर C, क्योंकि अगर B एक्सपोज नहीं होता तो C अपना ट्रांसमिशन कर लेता था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखो। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, द सिनेरियो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। रिमेंबर, बी वांट्स टू सेंड डेटा टू ए, बी ए को सेंड कर रहा है डेटा सेंड, सी टू समवन एल्स, ओके, ये सिनेरियो आपको पता है। बट सी इज पोलाइट इनफ टू सेंस द मीडियम बिफोर ट्रांसमिशन। आपको एकदम शरीफ बच्चा है सी, और सी ने किसी और को सेंड करा लेकिन फिर भी मीडियम को सेंस किया उसने। जब मीडियम को सेंस किया तो क्या लगा उसको, कि मीडियम तो बिजी है। तो C differs although C could never cause a collision netting, ठीक है। तो कोलिजन हो ही नहीं सकता बिकॉज एक ट्रांसमिशन इधर चल रहा है और ये इधर करना चाह रहा है, ठीक है। बट C was quite polite enough to sense the medium before transmitting and sensing a busy medium caused by the transmission from B। तो B का वो B आपका एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहा था, लेकिन उसने सेंस किया तो उसको रेंज आने की वजह से उसको क्या लगा कि मीडियम बिजी है और मैं नहीं कर सकता हूँ अभी, इसके लिए वो बेचारा रुक गया, ठीक है। ये आपका एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम था। अब इसको सोल्यूशन देखते हैं यूजिंग मैका, ठीक है। तो ये फॉरन देखेंगे, उसके बाद में विल वाइंड अप। मोबाइल आईपीएस के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग ये लास्ट वाला एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम यूजिंग मैका, ठीक है, सॉरी, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूजिंग मैका। सो विथ मैका बी हैज टू ट्रांसमिट एन आरटीएस सिग्नल फर्स्ट। देखो अब थोड़ा यहाँ पर डायग्राम नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करते जाओ, ठीक है। B has to transmit an RTS signal first containing the name of the receiver. The same RTS and CTS signal are going to use over here also, ठीक है। उसी RTS और CTS से आप यहाँ पर भी रिजोल्यूशन कर लोगे, इसीलिए एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं है यहाँ पर, डायग्राम लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बस पेन टेबलेट में ये बना, मैं आपको डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूँ। So with Maca, B has to transmit an RTS first containing the name of the receiver A, रिसीवर कौन है A और सेंडर कौन है B। तो भाई साहब यहाँ पर B आपका सेंड करना चाह रहा है, एक सेकंड में इसको कर ही लेता हूँ बिकॉज डायग्राम ही तो जिंदगी है हमारी। तो हमारा यहाँ पर A, ये है B, बहुत गंदा डायग्राम बनेगा लेकिन थोड़ा सा समझ के लो, ठीक है। ये है A, ये है हमारा B और ये है हमारा C, ठीक है। ये आपको सिनेरियो पता है। सो विथ मैका B हैज टू ट्रांसमिट एन RTS फर्स्ट, ओके। तो B को किसको सेंड करना है, A को करना है। तो B क्या करेगा, पहले एक RTS भेजेगा, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा हमारा, स्क्रीन बर्दाश्त नहीं हो रही। B has to send the RTS signal to A, okay। So B ने A को RTS सिग्नल सेंड किया। उसमें क्या रहेगा कंटेंट, उसमें कंटेंट रहेगा कि भाई देख B जो है ना तो सेंडर है, A जो है तो वो रिसीवर है, ठीक है। और हम 2 मिनट के लिए कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। ये RTS भेज दिया। C does not react to this message as it is not the receiver, ठीक है, बिकॉज अभी है नहीं कुछ। एक्नॉलेज, बट A एक्नॉलेजेस, ठीक है, A एक्नॉलेज करेगा तो क्या करेगा, CTS के थ्रू करेगा। अब इसकी रेंज कहाँ तक है, B तक की रेंज है। A की रेंज कहाँ तक है बोलो भाई, B तक के रेंज है, ठीक है। तो A will send the CTS signal to B,
ओके, यहाँ भेजा और यहाँ भेजा, ठीक है। तो इसने CTS सिग्नल भेजा। अब CTS में क्या रहेगा, it will confirm that your A will confirm that yes, I am the receiver, B is my sender, and we are going to communicate for 2 minutes. Okay, so it will contain these information, that is CTS will contain these information. Okay, C does not receive this CTS. अच्छा, ये CTS C को मिलेगा क्या, मुझे बताओ जरा ईमानदारी से। ये CTS किसको मिलेगा, B को मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज A की रेंज कहाँ तक है, खाली B तक है। इसकी रेंज A की रेंज यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तो कोई है नहीं, हमारा लफड़ा झगड़ा है नहीं, बस आपका जो झगड़ा था वो C तक जाने तक था, लेकिन आपकी सिग्नल आपकी रेंज B तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब नहीं पहुंच पा रही है तो सिंपल भाई हो गया, ठीक है। जो CTS भेजा, B कंफर्म हो गया, ठीक है। B मतलब के कंफर्म हो गया कि भाई चलो A रेडी है सिग्नल्स रिसीव करने के लिए। नाउ दे विल स्टार्ट देयर कम्युनिकेशन एंड C कैन स्टार्ट देयर कम्युनिकेशन विद एनी अदर नोड। Okay, C can start its transmission assuming it will not cause a collision at A, because कोई हलचल दिखी नहीं उसको, ठीक है। और हम लोग अभी सेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो RTS CTS यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, in exposed terminal problem can be solved using MACA. What will be done, an RTS signal will be sent to A, the receiver, okay, and the receiver will send the CTS signal to B, will confirm that A is the receiver, B is the sender, and they are going to communicate for 2 minutes. Okay, so this is the policy, or this is the what we can say, understanding will be decided between A and B. Okay, और C में इनका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जब C का लेना देना है नहीं तो C को अगर कुछ किसी और को सेंड करना है तो C कैन कम्युनिकेट विद इट्स अदर नोड whoever it wants to communicate. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी दो प्रॉब्लम जो मेन आते हैं, ये these problems can be solved using MACA. Okay, so hidden and exposed terminal problems can be solved using this MACA scheme, that is multiple axis with collision avoidance. Okay, multiple axis with collision avoidance, that is the MACA scheme. Okay, so we are making use of the RTS and the CTS signal, and with the help of these signal we can easily resolve these issues. Okay, everyone understood or not? Yes, sir.